अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका मिला आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के सामने कुछ बात करने का। Thank you so much. Apart from that, I would like to say a big thank you to Usam sir, the chairman of Galaxy Group, and in fact, the young international, CEO of Italian Express, Mr. Sayyid Isa Salami, Mr. Zahir. I want each and everyone to give a round of applause to this wonderful person. In fact, all the dignitaries who are here, I don't have to take their names because, alhamdulillah, they are so respected not only in Hyderabad, in entire Telangana, in fact, entire world. Because if I start taking their names, I think we don't have that much time because night just goes like that. But just I want to say, we are happy to have all these wonderful dignitaries. Thank you so much, sir. Now look, the reason why we are here today, you should understand. When Usam sir has taken this initiative to organize such a great event here, the purpose is to transform you, to make Hyderabad a European Hyderabad. Because inshallah ta'ala, the company what you are going to witness, the chief, Mr. Sayyid Isa Salami, he's got n number of experience. He's a great intellectual, he's got lot of knowledge about Europe. Why I'm saying all these things is, I know the person since a long time. Apart from that, Mr. Zahir is such a wonderful person. He's supporting, his organization. Apart from that, I just want to tell two dynamic persons who are sitting left to me. They are into IELTS and they are supporting for PT. Probably they will address you, but I'll tell you, this 1 hour or 2 hours, it will be a transformation for you all. I'll just take 5 minutes about myself, then after that I'll tell you what exactly this is all about. Alhamdulillah, in this world, you have to express, you've got to tell people who you are. For example, I'm just standing here and I tell that, look guys, you want to go to Paris? I will send you Paris. Then you say, Mr. Freud, first tell me, have you been to Paris? You got it. Obviously, you want to know कि भाई आप सही गए हैं या खाली बोल रहे हैं. तो Alhamdulillah, for your knowledge sake, I've got the privilege to travel more than 20 countries. Alhamdulillah, there was a time when I had lunch in London and dinner in New York. It's all because of my parents' blessings. Allah का एहसान है, मेरे बुजुर्गान पीर का सदका है, Allah मुझे दिया. ठीक है? Now the point is, this is a great opportunity. Why I'm emphasizing great opportunities? You got the cakewalk. Because earlier, we as a student, when I was a student, I love to go to Europe, but I don't know where to go, whom to talk, whom to believe. Are those candidates, are those agents, are credible enough? But now, things are not like that. Things are not like that. Here, we've got everything online. If you want to know, you want to go to France, it's quite clear on website. Why I'm saying all those things is, you don't have to do so much efforts. Because these lovely gentlemen who have come all the way from Italy, who have come all the way from different European countries, they are here, they will educate you. How to go, when to go, what are the documents you require. All those things are there. Apart from that, Usam sir, who is a, heart of this contract, heart of this organization. Because he is the one point contact in Hyderabad, or probably in Old City, where he will be addressing you all. What you need, all the documents. Look, I'll tell you one thing, as a brother, as a friend, as a relative, or as an Indian citizen, please understand, this is a golden opportunity what you have, but you've got to introspect each and every one. Look, I may tell you, I've been to 20 countries. You don't believe me? You Google who is for me. You check it out. How has he really traveled? Has he really had that, lunch in London and dinner in New York? Are you just talking about Hyderabad life? No. You've got to introspect each and everything. If someone said that, I'm sending you free of cost. I'm sending you free of cost to America, and I'm sending you free of cost to Europe. You've got to find out, are they talking truth? Why I'm saying all these things is, single penny is valuable.
your money is respected. But I'll tell you, inshallah ta'ala, the knowledge what they have, they'll transform you. Because you don't need any extra certificates here. What you are, for example, you want to graduate, you want to do something in Paris. Okay, so me, I'll do one thing. Okay, I say hi to my friend who has come here. Hi. So, what I want to tell is, since I've got some instructions, first you little motivate them, then you talk about that, so I'll do that, okay? Finally, I will just talk something which is definitely helpful to you, okay? In life, if you want to be prosperous and you want to be successful, trust me, you've got to have high goals. The problem with us is, we are only having 3 goals. I'll tell you honestly, what we do is, first you'll take care of your professional goal, you'll take care of your personal goal, you'll take care of your family goal, that's all. But I'll tell you one thing, if you want to conquer this world, you've got to have 5 goals in your life. Followed by family, professional, and personal, you've got to have society goals. Imagine those philanthropists who are sitting here, why are they sitting here? Do you think that just because they look handsome? It's not that. They have done so much to the society. They have transformed. They have given each and everything to the society. That's where they deserve. That's where they've got the privilege. There are so many people who are sitting here also. They are doing wonders. But what I'm trying to tell you is, if you want to be successful, you've got to have 5 goals. I was emphasizing on the goal called society goal. You've got to have that. Followed by spiritual goal. जब अल्लाह ताला की कुछ रज़ामंदी होगी तो ही आपकी कामयाबी होगी. समझ रहे हैं? ये 5 goal quite important. But this we've got to welcome the handsome, young, dynamic CEO of Italian Netflix. Yes, so I was talking about 5 goals. Understand? This is need of an art. How many of you are ready for it? It's okay, should I continue? Yes. So we will try to finish up as fast as, okay? But this, as earlier I have spoken about, what to do, how to do, when to do, all those things. There is a great opportunity now. You've got to go step by step. Last thing I want to tell you, please, believe in yourself. Don't believe any rosy pictures. I have immense respect for everyone, but I say, look, first to find out who they are, what they are, whether we should go or not. Because I'm telling you, this is a golden opportunity. Alhamdulillah, we never ever thought that Europe will come to Hyderabad. Because I remember Samsar always used to talk, Fahim, old city is not an old city, it's a gold city. So that is the time, it has come. Now we will, inshallah, we will make Hyderabad at the European headquarters. I'm talking in education way, but this I just want to say a big thank you. Thank you so much, Jazakallah. Now I would like to call the principal of AR College, Haider sir, on the stage, and Rubina ma'am from Francophone French. For giving us this opportunity to be here and sticking with us for so long. My name is Kishan. I am from PSN Just of English. Most of you, or some of you might have heard of PT. Have you? I mean, can you raise your hand if you have heard of PT? Anybody? Okay. Just one. So PT looks like a very less popular test here. How many of you have heard of IELTS or TOEFL? Great. Okay. So PT is a similar test to IELTS and TOEFL. It has the same application, but in our further slides we are going to see how different it is from IELTS and TOEFL. PT एकेडमिक क्या है? ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये किस लिए जरूरी है, किस लिए दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा देर हम लोग बात करते हैं, एंड देन वी कैन गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन. जब भी कोई नॉन नेटिव स्पीकर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको अपने साथ एक प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना पड़ता है. एंड मेनी अ टाइम्स वो आपका 10th या 12th का जो स्कोर कार्ड होता है वो एज अ प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी एक्ट नहीं करता है. आपको एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट देना पड़ता है जैसे कि IELTS हुआ, TOEFL हुआ, और उसी तरह से PT भी एक और ऑल्टरनेटिव आपके पास है. IELTS, TOEFL और PT में एक बेसिक डिफरेंस
ये है कि वो दोनों टेस्ट जो है पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, आपका स्कोरिंग जो है वो ह्यूमन्स के थ्रू किया जाता है। तो इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरव्यू, और जब भी कोई चीज़ एक इंटरव्यू के शेप में, एक इंटरव्यू के फॉर्म में होती है, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज लोग आपको जज करते हैं आपने क्या पहना है, आप फॉर्मल्स में आए हो या इनफॉर्मल्स में आए हो, आप किस तरह से बोलते हो, आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या है, आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेस्ट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो डेवलप प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू किया जाता है। तो टेस्टिंग भी कंप्यूटर पे होता है, इसका इवैल्यूएशन भी कंप्यूटर ही करता है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड स्लाइड। So the first slide, we are going to cover TT Academic, accessibility, scoring and recommendations. Next slide please. So TT Academic is a computer-based test that provides proof of your English proficiency, and it is used not just for student visa purpose but also for immigration purposes. How is TT Academic test different from other tests? First of all, TT Academic test happens 365 days of the year. मतलब आप साल के किसी भी दिन ये टेस्ट लिख सकते हैं। हैदराबाद में हमारे 2 टेस्ट सेंटर हैं, ऑल ओवर इंडिया वी हैव मोर देन 60 टेस्ट सेंटर, एंड एज आई सेड ये 365 डेज होता है, तो आपको कभी भी वेट नहीं करना होता है स्लॉट ओपन अप होने के लिए, अनलाइक IIM फॉर टोटल। It's a single 2-hour test. Unfortunately यहाँ पर गलती से 3 आवर मेंशन्ड है, तो काइंडली इग्नोर दैट। 98% ऑफ द रिजल्ट जो है वो सेम डे आ जाता है, तो बिकॉज एज आई सेड इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो टेस्ट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। 98% ऑफ द टाइम इट विल कम सेम डे, ऑफिशियली वी से 5 days। It's accurate obviously because it's a computer based test, AI is relevant and objective because we use only genuine content and the context is real life based. Enhanced security. Needless to say, since this happened in our secure test center, our security is top notch. In fact, we have bank layer security to conduct this test. Next slide please. This is a process of booking your test. It's more convenient, registration, etc. So it's just 3 steps. All you need to do is go to mypt.com, create your account, book your slot, and that's it. Next slide please. These are the points that I discussed in the beginning because it is scored by a computer. Error rate also come in. We assess English in more ways than one, and this is a very important thing because हम लोग अलग-अलग रीजन से हैं, अलग-अलग स्टेट से हैं, तो हम लोगों का एक मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण बहुत बार हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। बट टीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एल्गोरिथम कोई भी मदर टंग हो या कोई भी रीजनल एक्सेंट हो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ये एक टिपिकल टेस्ट सेंटर इस तरह का दिखता है टीटी का, आप देख सकते हैं वहाँ पर आप सभी को एक टेस्ट असाइन होता है टेस्ट लिखने के लिए, और ये एक टिपिकल टेस्ट सेंटर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के टेस्ट को कौन रिकॉग्नाइज करता है। तो पीटी टेस्ट वैसे तो पूरे दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है, बट लेट्स टॉक अबाउट द मेन डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स को। तो प्राइमरली इंडिया से स्टूडेंट्स जो है वो 4-5 डेस्टिनेशंस में जाते हैं, एंड उसके बाद अभी यूरोपियन कंट्रीज का भी हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन के बारे में। यूएसए, जहाँ की एट प्रेजेंट मोर देन 1500 इंस्टीट्यूट पीटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट नहीं है। इनफैक्ट हार्वर्ड और येल जैसे इंस्टीट्यूट भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, वो भी पीटी टेस्ट एक्सेप्ट करता है। कनाडा में हम लोग करेंटली 98% पहुंच गए, 90% से हमारा कवरेज।
बट कनाडा में एक कैच ये है कि 2 कैटेगरी ऑफ वीजा रहते हैं स्टूडेंट के लिए, एक होता है नॉन एसडीएस और एक होता है एसडीएस। तो करेंटली हम लोग नॉन एसडीएस कैटेगरी में एक्सेप्टेड है, एसडीएस कैटेगरी में शायद थोड़े टाइम के बाद हमारा एक्सेप्टेंस आ जाएगा। Give us a little bit of detail in the last page. Sorry. Right. So we spoke about 2 major destinations, but apart from that, we are also accepted in UK, Ireland, Germany, Australia, New Zealand, and many other countries, increasingly in Asia as well as Europe. These are all test center locations that you can Google yourself. Pretty much self-explanatory. Next slide, please. So this is talking about our competitive advantage, but I am going to skip this slide. I don't want to bore you guys further because you've been sitting here for so long. But yeah, I have spoken about the competitive advantage that we have. It's faster. You can book in 24 hours. Results are typically available within 2 days. It's a 2-hour session of test, and that's it. Booking the test is easy, writing the test is easy, getting your score is easy, and going abroad also is becoming more and more easy. That's all from my end. I'm not going to cover the difference between IELTS, TOEFL and IB. I leave it to you guys. You can do a little bit of research about this on Google. So that's it from my end, and thank you so much everybody for giving this opportunity once again. Thank you, Isha sir. Thank you organizing committee and all the individuals here. But It's Possible Institute in Jabalpur is our authorized, is a PD certified trainer. So if any of you have any training needs, if you want to consult about studying abroad, you have somebody who is well experienced, Mr. Zaki sir. Please contact him. You can get his number or contact details from the organizing committee. Thank you everyone. I just want to welcome a great dignitary. I just want to know his name, who is he. I will tell you, the person is so humble, so gentle. By anyway, it's my noble duty to announce his name. His Excellency Professor M.A. Najib, International Peace Ambassador, UPF, United Nations Relations, UN Plaza, New York, USA. International motivational speaker from California, USA, having association with many universities in USA, UK, Europe and UAE. But this, I just want to welcome Mr. M.A. Najib. Please, if you can share a few words on the dais, it will be of great support. Apart from that, I just want to tell you one thing which I thought Mr. M.A. Najib should tell, but I will take the privilege and tell on behalf of him if he gives the permission. He is going to support all the students in the form of loans. Am I correct, sir? And how is that? I want him to tell that. Please do welcome, sir. Great beginning and a very beautiful morning with you all. Dignitaries on the dais, management of today's program, wonderful audience, students, youth, salam and peaceful greetings to you all. It gives me immense pleasure to be part of this wonderful gathering. I really want to congratulate to the Galaxy College management for taking such a great initiative, bringing the awareness about overseas studies, and it is really a fantastic concept and great initiative. इस तरीके से लोगों में जो अवेयरनेस के प्रोग्राम होने से पता चलता है कि दुनिया में कहाँ से हम जो है किस तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे यूथ हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं and they want to get the information, awareness, how to take the admissions in overseas universities like America, UK, Europe. So I was hearing the presentations which was given by European College मैनेजमेंट। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्पीचेस आप लोग सुन चुके हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई है, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मुख्तसर से अंदाज में मेरी अपनी कैपेसिटी में मैं आप सबके बीच आकर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए और मुझसे क्या हेल्प हो सकती है, so I can talk on that. So I, as being International Peace Ambassador by UPF, Office of United Nations, New York,
We work and support the activities of United Nations in 170 countries. I belong to Hyderabad, but I am traveling the world for the past 22 years, having headquartered in United Nations, New York. So since I was hearing all those things, I had no idea of this, all these things when I came here, but यहाँ पे आने के बाद मुझे कई चीज़ों का आइडिया हुआ, पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम है और इस तरह की ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं और स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं, यूथ भी नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये जिस तरह के जो कॉलेजेस में एडमिशंस की बात की गई है, जो कोर्सेज आपके फेवरेट कोर्सेज हैं, आपके जो कोर्सेज विच यू वांट टू चूज, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। इट इज माय प्रिविलेज, मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपनीज हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो ओवरसीज एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जो स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन के लिए, एमएस के लिए, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज को, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ना स्कॉलरशिप के फैसिलिटीज हैं, उसका एक प्रोसीजर है। साथ साथ कुछ प्राइवेट बैंक भी होती हैं जो इसके लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं वो बैंक के जो है डिसीजन मेकर्स है, तो जो प्रोवाइड लोन ऑन प्रोड्यूसिंग सम डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी जो है ना स्टूडेंट्स लोन अवेल करना चाहते हैं बैंक से, तो उसके जो क्राइटेरिया है मैं जनाब हुसैन साहब से और मेरे ब्रदर मिस्टर फहीम मोटिवेशन स्पीकर से मैं शेयर करता हूँ। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको कांटेक्ट करा देंगे कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये जब आपकी ये चीज़ की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसमें आपको वीज़ा लगने में भी ईजी हो जाता है कि भी गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर रेडी टू प्रोवाइड द लोन्स एंड स्कॉलरशिप टू दैट। तो उस तरीके से मैं कॉन्टैक्ट दे दूँगा हमारे मैनेजमेंट को, हुसैन साहब को और मिस्टर फहीम को, वो आपको कनेक्ट करवा देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल वे है। आजकल तो सबके पास आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, बैंक लिंक कार्ड होते हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसको क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। डेली हैदराबाद से जो है लंदन के लिए डेली फ्लाइट है, अमेरिका के लिए डेली फ्लाइट है। किस तरह से कैसे जा रही है, खाली फ्लाइट जा रही है थोड़ी। ये यहाँ के जो ना जो टेक्निकली जो साउंड में है, सॉफ्टवेयर बच्चे आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से जो पढ़े हैं, पढ़ के जो ना वहाँ पे जॉब्स के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी जो आगे बढ़िए, नर्वस मत होइए कोई चीज़ के लिए। ना उम्मीद है जो आदमी को चकड़ लेती है, वरना रास्ता कोई भी नामुमकिन नहीं है। तो अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचिए। आई एम आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, बट माय ब्रदर फहीम हैज ऑलरेडी स्पोकन, ही हैज गिवन मेनी टिप्स टू यू ऑल। I don't think much thoughts when we have connected, definitely we'll talk. मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते, एक ही बात कहूँगा कि जो जो आपको कुछ अनुमत आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में काम करना है। A person with a positive attitude is like a fruit of all season. And also it is said that success is not the key to happiness. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love the job you are doing, you will be successful. So this is very much important, your positive attitude, your dedication, your focus. How you focus on the things. बस बैठे सुन के चले गए, फिर सेकंड उसको भूल गए। That should not be the case. If you are doing in life something, you do it wholeheartedly. Because most of youth are here. That's what I am emphasizing on this point. Do it wholeheartedly, otherwise you don't do the things. एक उर्दू में बहुत अच्छा शेर है, वो शेर बोलते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। हर जगह में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हर जगह में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। हर जगह में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। जाना है उस पार, जाना है उस पार तो तूफान भी मिलेंगे, जाना है उस पार तो तूफान भी मिलेंगे। इतना डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। और एक शायद अनवर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कुछ शेयर कहा है। And there are a lot of courses, vocational courses that can be done after 10th, and there are diploma courses, paramedical 2 years diploma courses that can be done after intermediate, and there are various degrees like DPT, BSc Nursing, PMLT, and everything bachelors that we are running in Galaxy Institute of Paramedical Sciences, and we are also having PG courses in paramedical sciences. Along with this, we are in the name of Galaxy Foundation, we are running almost 30 different various free courses
जिसकी एलिजिबिलिटी 10th है, ऐसे बच्चे जो 10th पास करे हुए हैं उन लोग ये कोर्सेज करके अच्छे जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। ये कोर्सेज का ड्यूरेशन 6 महीने का है। 3 से 6 महीने के अंदर बच्चों को जो है पैरामेडिकल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है और वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो सेंटर है वो फलकनुमा पे है, गैलेक्सी फाउंडेशन नाम से। तो ऐसे बच्चे जो 10th पास हो या इंटर पास हो या कोई भी हो जो अपने पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोग भी ये कोर्सेज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि कम्प्लीटली 30 कोर्सेज है जो हॉस्पिटल रिलेटेड है और असिस्टेंट पैरामेडिकल कोर्सेज है। गुजारिश है कि जो है इसका फ़ायदा उठाएं और जो है अपना फ्यूचर पैरामेडिकल कोर्सेज में बनाएं। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन की वजह से उसको हमें ऑनलाइन करना पड़ा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गैलेक्सी की तरफ से कि बच्चों को जो है हायर स्टडीज़ के लिए ये आमादा किया जा रहा है। इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स अपनी तरफ से ये देना चाह रहा हूँ कि जैसा दूसरे स्टेट्स में भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होती हैं। जैसा अभी आपने बताया कि जो है लोन के जो है कई ड्राइव होते हैं, कई जो है अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये देखें कि हम 12th के बाद जाना चाह रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद जाना चाह रहे हैं। और जैसा आपने निशानदही किया है कि US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा जो है कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हम हमारा फ्यूचर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी बताया, यूरोपियन कंट्रीज बताया। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स, मैं इंडियन कॉलेज में 10 साल पढ़ा चुका हूँ। वहाँ के भी स्टूडेंट्स, मेरे साथ के जो भी स्टूडेंट्स थे वो जर्मनी यूके में जो है 20 साल गए। तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। उसमें सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोफाइल और मेरा जो है डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ से मैं अपनी हायर एजुकेशन करा। मिसाल के तौर पर जैसा +2 के बाद बताया है, +2 के बाद स्किल्ड वर्कर, यानी आप इंटरमीडिएट करिए और जस्ट यू वांट टू लैंड इन जर्मनी, नो यू हैव टू बी स्किल्ड, यानी आप हुनरमंद होना जरूरी है। आपके पास ऐसे स्किल्स होना ताकि आप वहाँ पर जॉब हो जाए या बैचलर कोर्सेज करें। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है MS प्रोग्राम्स के लिए आप ग्रेजुएशन करने के बाद MS के लिए जा रहे हैं तो किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। अब जैसा US की यूनिवर्सिटीज़, US में 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में मेरा ख्याल से गैलेक्सी ग्रुप और हमारे यहाँ पर अभी जो पीस कीपिंग के जो है एम्बेसडर हैं उनको जो है मालूम होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, चाहे आप US जाइए चाहे कोई अब्रॉड करते चाहिए, आपके पास बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप टाइम बात नहीं है तो आप फॉरन कहीं भी जा सकते, कौन सा भी कोर्स कर सकते। इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास से 3 से वेबसाइट पर देख रहा था आदित्य विद्या निधि स्कीम बोलते हैं, जहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट आपको 30 लाख रुपये देती है हायर एजुकेशन के लिए, जो रिफंड करना पड़ता है। उसका जो है करेक्टली आप आइडेंटिफाई करके आप सही यूनिवर्सिटी का इंतखाब करके आपको 2 साल वहाँ रहते हुए अपनी फीस के लिए जैसा खुद जो है आपको अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है। 20 घंटे आपको जॉब करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ओल्ड सिटी के जितने भी तलबा तालिबात हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को आप जो है इसको जो है आप हासिल कीजिए, उसको एक्सप्लोर करिए। और मौलिया तलबा तालिबात से भी मेरी गुजारिश है कि आप इसकी सही नुमाइंदगी करते हुए उनकी रहबरी करें और सर्विस के लिए आमादा करें। तो बहुत सीरियस मैटर है कि अगर हमको ऐसे मौके जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको ग्रैब करना चाहिए और इससे जो है हमको जो है हमारा फ्यूचर बनाना चाहिए। फिर से मैं गैलेक्सी ग्रुप के डॉक्टर हिसाबुद्दीन साहब इधर देखना मेरे साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है यहाँ के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मगर अफसोस की बात यहाँ पर टेक्निकल, वोकेशनल, प्रोफेशनल तमाम कोर्सेज हैं, उसमें हमारे तेलंगाना की जो है
परसेंटेज बिल्कुल 20 से भी कम है। तो हमारे शहर में यूनिवर्सिटी होते हुए जो है हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। अब ये गुजारिश है, डबल गुजारिश है और ये तालिबात से ऐसी अपॉर्चुनिटी को सीरियसली जो है कॉन्सेंट्रेट करें, गौर करें, फिक्र करें और अपने बच्चों को जो है आला तालीम के लिए एक लाइन के तौर से जो है इस पर आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। इनका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको किताब से आइए नसीमा मैडम, आप आइए, तशरीफ फरमाइए, आइए आप तो प्रिंसिपल दक्कन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आदिल के मैडम हैं, तो मैं उनसे खिताब करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई फ्यू वर्ड्स प्लीज। शेख आदिल दक्कन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के मैम हैं। मेरी तो यही एडवाइस है, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका ये जो साल गुजारे ग्रेजुएशन के साल आपके साथ जिंदगी में रहेगी, तो अभी आप चॉइस आपकी है। अब आप करेक्ट चॉइस, आप एजुकेशन के मामले आप करेक्ट चॉइस किए तो आगे का आपकी पूरा फ्यूचर सिक्योर रहता। ठीक है, जो सर बता रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं कि जो लोग बाहर जाके करना चाह रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास गाइडेंस अवेलेबल है। ठीक है, यूरोप, US वगैरह आप जो भी गाइडेंस चाह रहे हैं अप्रोच करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तकरीर के रोहे रवा जनाब हुसैनुद्दीन साहब के नसीब तशरीफ के फरमा मौजूद हजरात, फर्जंदान इस्लाम, दुख्तरान उम्मत, आज जो गैलेक्सी ग्रुप का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन अक्सर दराज से इनकी खिदमत है तालीमी मैदान में, तो जो लोग तालीमी मैदान में काम करते हैं उनकी जितनी शिकायत की जाए कम है, क्योंकि इस दौर में कोई काम भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बेहद मुश्किल है। और उसमें तालीमी इदारे चलाना और फिर अपने लोगों की तालीमी मुजाहरे के लिए उनका अच्छा नमूना पेश करने के लिए ऐसे प्रोग्रामों के जरिए लोगों को मुतासर करना ये बेहद ज़रूरी है। मैं सबसे पहले उन तलबा और तालिबात के वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी औलाद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का फैसला किया है। इस फैसले पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका यह फैसला आपकी नस्ल को, आपकी औलाद को, उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए एक सुनहरा दौर को उनको फराहम करता है। इसके लिए आप लायक मुबारकबाद है। फिर उसके बाद तलबा तालिबात जो तालीम हासिल करते हैं, वालिदैन अपनी आपसे पुरुमीद हैं, आप चौकीदार वाबस्ता किए हुए हैं। आपका भी काम है कि मेहनत करके कामयाब होकर अपने वालिदैन जो उम्मीदें जाहिर की हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और अच्छे नंबर से कामयाब होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मुस्तकबिल आपका होगा, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। ये दौर में बगैर तालीम के, बगैर इल्म के हमारे लोग तरक्की नहीं कर सकते। इल्म बेहद जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है, लेकिन आज वो घराने जो गुर्बत में मुब्तला रहने के बावजूद भी अपने खून और पसीने की कमाई से अपने औलाद को तालीम दिला रहे हैं, उनकी इस सजदे की मैं कदर करता हूँ और मेरी नेक तमन्ना उनके साथ है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे आए, पढ़े और अच्छे नंबर से कामयाब होकर अपने मदरसों का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यहाँ ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लड़के तो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आने वाले दौर में और आज के दौर में ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है।
वो जमाना जा चुका, सिर्फ खत लिखना है, अखबार पढ़ना है, इतनी ही तालीम बस खवातीन के लिए कहा जाता था। लेकिन आज मर्दों के जाना बचाना चलने का जो मौका खवातीन को, लड़कियों को मिल रहा है, लड़कियां उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो नताज आते हैं कॉलेजों के, उसमें बाद तालीमी इदारों में लड़कों से अच्छे नताज लड़कियों के आते हैं। ये खुशाइन बात थी। लड़कियों को बढ़ाना, उनको आगे करना, ये वक्त का है, तरी तकाज़ा है। जैसा अली हुसैन साहब ने कहा, मायूसी कुफ्र है, मायूस होने की हमको जरूरत नहीं है। लड़की का बड़ा बुलंद मुकाम होता है, इसलिए किसी शायर ने कहा, बड़ी है घर में शान लड़की से, महकता रहता है सारे जहान बेटी से। बड़ी है घर में शान बेटी से, महकता रहता है सारा जहान बेटी से। जरूरी नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। शुक्रिया। Thank you so much, sir. सर 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 इधर देखिए, इधर शाम सर। सर इधर देखिए, शाम सर। सर इधर देखिए सर। I would like to request the student of the year, Mr. Ibrahim, Ms. Muskan, Mr. Una, please go on the stage. वही जाइए, वही जाइए। इसके बाद एक देख के देखिए। भाई टाइम इधर एक सेकंड सर। इसको देखना May today's success of the beginning of tomorrow achievement. Congratulations students. शाम सर। सर अच्छा इसको शाम सर इधर देखिए सर। सर क्या ब्रांड की देखना रहे तो मैं ले लेती छोड़ दे लाइट ये ले रहे ना वो इधर ले जाते तो भी ले लो।
तो ये लो इससे ले दो नहीं नहीं इससे ले लो इसको देखना ये अपने आपका साइड में आ जाइए। इसके लिए वीडियो की फोटो देखना सर फहीम सर इधर यस रेडी इधर भाई थोड़ा सामने से किया भाई आइए इधर इधर एक सेकंड यस रेडी थोड़ा इधर देखना होगा इधर शाम से सर का सही करना है मामू जाओ मामू मामा जाओ उधर उधर क्लोज जाओ हाँ एक सेकेंड अरे तो देखो सर 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 शाम सर थोड़ा इधर देखिए इधर देखिए मैं अकेले में हमारा फोन निकालो शाम सर सर इधर देखिए सर देख अलीम भाई अलीम भाई के लिए इधर देखना इधर यार रिश्ता टूट जाता था मैं जाता हूँ रिश्ता टूटता नहीं
तो इधर देखना चलिए थोड़ा इधर आइए सर। राइट इधर देखो। इधर देखिए
मेरा नाम सैयद ईसा सलामी है। मैं आप लोगों को उर्दू में ख़िताब करूँगा। वजह यह है कि आप लोगों का चैनल जो है उर्दू का है, इंग्लिश में इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इटालियन ग्रुप्स की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, और इटालियन ग्रुप्स में जो है इटालियन एडेक्स बोल के एक यूरोपियन कंपनी है। ये जितने भी यहाँ पर आज जो इवेंट हुआ है वो यूरोपियन एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम पे रखा गया हुआ है। यूरोप में बच्चों को क्या बेनिफिट्स है, क्या स्कॉलरशिप्स है, जो मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं जो सोचते हैं अब्रॉड्स में एजुकेशन के लिए, जो यूएस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के वास्ते जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरमाया लग जाता है, पैसा लग जाता है, वो नहीं है वो सिस्टम यूरोप में। यूरोप में है फ्री एजुकेशन भी मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, पेड भी एजुकेशन है। डिपेंड करता है बच्चे की क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, मेरिट बेस के ऊपर। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए हैदराबाद में जो है, पुरानी शहर में जो है आज तक इवेंट नहीं हुआ। हमारी कंपनीज करती है बड़े होटल्स में, मेरियट में होता है, ताज कृष्णा में होता है, सारी जगह। सिर्फ ये हमारे हैदराबाद के
बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जिनके पास यूरोपियन एजुकेशन सेक्टर के अवेयरनेस आने के लिए ये प्रोग्राम करा गया है। और साथ में हमारे जो है रिक्रूटिंग पार्टनर है गैलेक्सी एकेडमी के हुसाम सर, और इंशाल्लाह जो है ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे आगे भी दूसरे आरपीस के ज़रिए। और आप यूरोपियन एजुकेशन के वास्ते अगर आप इटाली, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड कहीं के लिए भी अगर आप बैचलर्स कोर्स या मास्टर्स कोर्स के लिए जो है आप हुसाम साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सर एक प्राइवेट कंपनी रहने के बावजूद जो टैलेंट कंसर्न है ये तो सिर्फ खाली स्टूडेंट्स के लिए था, जो ख्वाहिशमंद रखना चाहते हैं हैदराबाद में अपना गाना के रखे जो ख्वाहिशमंद है इसके लिए लोग में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोग डायरेक्टली कंसल्टेंसी से अप्रोच होते हैं। यही है कंसल्टेंसी। देखिए कंसल्टेंसी जो है ना वो अपनी सर्विस चार्ज लेती है, इसीलिए कंपनी अब नया मॉड्यूल लेके गई है। हम पिछले जो है 12-13 साल से जो है कंसल्टेंट के वास्ते काम करते थे, मतलब कंसल्टेंट हमें फाइल भेजती थी, हम काम करते थे। अब हमारा नया मॉड्यूल आया हुआ है, वो हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होना, इवैल्यूएशन सही होना, बच्चे को सही इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलना, उसके ज़रिए जो है वो बंदा जो है कौन सी कंट्री जा सकता है यूरोप में, क्या कोर्स कर सकता है वो बंदा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो उस तरीके से हमारा इंटेंशन यहाँ पर आके ग्राउंड पे काम करने का यही है। यूरोप में बेस्ड कंपनी है हमारी, जर्मनी में है हमारा ब्रांच, स्वीडन में है हमारा ब्रांच, इटाली में हेड ऑफिस है हमारी, समझ रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहेंगे, बेनिफिट्स। और जो बच्चे इंटरमीडिएट करे हुए हैं, असल ये प्रोग्राम करने की वजह ये है हैदराबाद में और एक कि स्किल्ड वर्कर की कमी हो रही है यूरोप में। अब नियर अबाउट 25 to 30, 20-25 से 30 तक के बीच में मोर देन 45% रेशियो रिटायरमेंट पे चले जाएगा, और उनके पास जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है, और उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। इवन दो उनके पास वेल्डर्स की, लाइट मशीन की, इलेक्ट्रिशियंस की, इसकी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं आप, मैन पावर का जो है बड़ा जो है प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए जो है एशियन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वाले। तो लिहाजा इंशाल्लाह हैदराबाद में भी आगे ये काम चलते रहेगा। सर एक जनरल सवाल है, जो सवाल ये है कि बच्चा इतना पढ़ने के बाद यहाँ से सोच के जाता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, वहाँ पर पीजी करूंगा, फिर एमएस करूंगा। इसका अगर आप जैसा कि बताए कि वेल्डर वगैरह की जरूरत, तो क्या उसको ये थिंकिंग नहीं आएगी कि मैं इतना पढ़ने के बावजूद मैं वेल्डर का काम करूँगा? आप मेरी बात नहीं समझे। जो बच्चा मास्टर्स करता है टेक्नोलॉजी में, उसको टेक्नोलॉजी में एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। जो इलेक्ट्रिकल में, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ इंटरमीडिएट करे हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ है यूरोप में, उनके लिए बात कर रहा हूँ, ना कि ये जो मास्टर्स करे। अब देखिए मैं खुद 3 मास्टर्स करा हुआ हूँ यूरोप से, फेलोशिप करा हुआ हूँ मैं तो, और वो भी मैं 2 मास्टर्स तो मेरे फ्री एजुकेशन में हुए। एक में इतना आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ के इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में जितनी फ़ीस होगी ना, उससे भी कम फीस में मैं मेरा तीसरा मास्टर्स कराऊँ। मीन्स सालाना नियर अबाउट 35 to 40,000 इंडियन रुपीज़। तो ये अच्छी बेनिफिट है। ये हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, यही अवेयरनेस के वास्ते हम ये कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से हैदराबाद के बच्चों के वास्ते। और अभी तो हम आरपी से, हमारी हेड ऑफिस यूरोप में है, ऐसे आरपी से जैसा गैलेक्सी एक आरपी है, क्यूबिक कंसल्टेंट एक आरपी है। हैदराबाद में हम सिर्फ 4 आरपी रखना चाह रहे हैं। वैसे तो हमारे खुद के जो है क्लाइंट जो कंसल्टेंट होते हैं वो मोर देन 35 है, मगर हम वो सारे क्लोज करके, वजूहत ये है कि बच्चों को ये नहीं बता रहे हैं कि ये बच्चा जो है हमारा जो है क्या कौन सी ये कंट्री के वास्ते एलिजिबल है, क्या इसकी पढ़ाई एलिजिबल है, नहीं बस उसका एडमिशन कोई प्राइवेट कॉलेज से निकाल रहे, डाल रहे हैं, वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ते जा रहे हैं। समझ रहे सर, वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है। तो वो वजह से, क्यों बोले तो अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को ये नहीं मालूम कि ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं कौन सी कंट्री जाऊँ, बस बच्चा बाहर जाना चाह रहा है। हमारी कंपनी पहले इवैल्यूएट करेगी, असिस्ट करेगी, उसके बाद वो बंदे का प्रोसेस होगा हमारे आरपीस के ज़रिए। हमारा मैसेज यही है, या और आप लोग कोशिश ये करिए कि सर्च कीजिए, रिसर्च करिए यूरोपियन एजुकेशन के बारे में, बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, बराबर हमारी कंपनी से ताल्लुक़ कर सकते हैं, या हमारे आरपीस से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ कोई कंसल्टेंट आके नहीं बोलेगा सर,
कोई कॉलेज वाला आके नहीं बोलेगा। अब ये जितने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के जितने कॉलेजेस आते हैं सेमिनार्स करने, उनकी एक साल की फ़ीस जो है 12,000 15,000 यूरो रहती है। उसमें से कुछ परसेंटेज कंसल्टेंट्स को आता है। वो आओ मत आओ, उन्होंने सर्विस चार्ज उनका ले लेते हैं, निकल जाते हैं। बच्चे के करियर का कैसा? अगर बच्चे का रिजेक्शन हो गया, बच्चा जो है डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों जा रहा है? इवैल्यूएट सही कीजिए। यही हमारी कंपनी यही चाह रही है, अवेयरनेस लाना की कोशिश कर रही है कि भाई बच्चा खुद अपना जो है, जब तक इवैल्यूएट नहीं हुए अपना कौन सी कंट्री सेलेक्ट ना करे, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करे, ये इम्पोर्टेंट है। और सारे हमारे आरपी से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का सही इवैल्यूएशन, सही असेसमेंट करके उनको जो है बाहर के वास्ते प्रोसेस को जो है फर्दर एस्केलेट करें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओल्ड सिटी में पहली मरतबा यूरोप एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर मेहमान खुसूसी अहमद पाशा खादरी साहब थे और ब्रांड एम्बेसडर नजीब साहब थे और दक्कन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और दूसरे NGOs के, ग्रुप्स के, इंस्टीट्यूशंस के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स, HMs वगैरह यहाँ पर थे। ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल करम ये है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो अपने इंडिया में अगर किसी को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो हुकूमत के ऊपर तोहमत दे रहे हैं कि यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड वगैरह नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ये मार्च पूरे अल्लाह सुब्हानो तआला पूरी दुनिया में लिखा है। कहाँ पर भी मार्च तलाश करने के लिए हम यूरोपियन कंट्रीज़ भी जा सकते हैं और मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट भी जा सकते हैं, ताकि रिस्क हमारे को कहाँ से भी अल्लाह सुब्हानो तआला लिखा तो वो हमको ज़रूर मिल के रहेगा। और हमारी कोशिश यही है कि ओल्ड सिटी के यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस दे और उन्हें अपने लाइफ को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी फैमिली को, अपने कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें, ताकि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी के साथ सॉल्व कर सके। और ऐसे हम लोग ओल्ड सिटी में स्किल्स भी इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अब्रॉड्स में जो है आइल्स है, टोएफल, लिंगो है और दूसरे जो जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेजेस है, इटालियन लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेजेस भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ओल्ड सिटी में वो लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे प्रोफेशनल्स बने और अपना मुस्तकबिल संवारें और अपना सीट्स जो जॉब्स के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिक्वायरमेंट उन लोग वर्ल्ड के कौन से भी कोने में अपना रिस्क आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं और अपने आप को अपना लोहा मनवा सकते हैं। कंसल्ट के लिए कहाँ पर हम बच्चों? ये गैलेक्सी कॉलेज शाली बंडे पे है, वहाँ पर अल्लाह ताला के फजल करम से KG से लेकर PG तक कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं, लॉट ऑफ कोर्सेज है। उसके साथ भी हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ भी उन लोगों को हम लोग टाई अप कराएंगे और उसके लिए जो लोन्स होते हैं जिसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है 35 लाख रुपीज़ उनको गवर्नमेंट लोन दे रही है और माइनॉरिटीज़ के लिए 25 लाख रुपीज़ लोन दे रही है जो यूरोपियन कंट्रीज़ अब्रॉड को जाने के लिए, वो लोन्स के भी हम लोग सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। बच्चों को इंग्लिश में और फाइनल ईयर में पास परसेंटेज 65 के ऊपर हुआ तो उन लोगों को आसानी के साथ वीज़ा स्टैम्प हो सकता है और कॉन्सुलेट्स में उनका इंटरव्यू आसानी के साथ उन लोग दे सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ में आसानी के साथ उन लोगों को एडमिशन्स मिल सकते हैं। और एक मैसेज क्या देंगे आप ये जो काबिल बच्चे हैं? मैं ये बच्चों को, काबिल बच्चों को कुछ ना कुछ करना ही कामयाबी है, कुछ नहीं करने से बेहतर है। अगर अपने इंडिया में, मैं तो सबसे बेस्ट बोलूँगा, आई एम ए इंडियन, प्राउड ऑफ इंडियन है मेरे को। इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करने बैठे तो। अगर जॉब्स नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रहे तो हर कोई यंग यूथ अगर बिजनेस की तरफ अपना माइंड अगर डाइवर्ट करो तो वो बच्चे, वो यंग यूथ मिलियनर्स, लखपति, करोड़पति, मिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स बन सकते हैं। अगर जॉब्स बोले तो एक लिमिटेशंस में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।